یہ ژھۄٹھ امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ پرابلم اَسہِ گژھان نہ چھِ بنان بچن یپٲرۍ پکُن نہ چھِ بنان یپٲرۍ چاروٲے یلہٕ تراوُن نہ چھِ بنان یورٕ کٲنٛسہِ وسُن بچہِ زن وسان گِنٛدنہِ امہِ سۭتۍ چھِ پرابلم یِمن ییٚتہِ چھِ ہوٗنۍ آسان ییٚتہِ آیا پرُس تحصیلدار صٲب تِم ترٛاونٲے ییٚتھی یپٲرۍ یہِ باجر واجر یہ تہِ آیہِ نہٕ شیرنہٕ پتہٕ کِہیٖنۍ یِمو دپے أسۍ سنبھالو یہِ دٔستی 10 دۄہن 15 دۄہن اندر ہسا کرو أسۍ یہِ کٲم یہِ ہسا کرو بۄن تام یہِ وتھ ٹھیٖک یہِ ہسا وسہِ بۄن یہِ ژھۄٹھ تہٕ تمہِ پتہٕ ترٛٲوٕکھ یہِ تہِ آیہِ نہٕ شیرنہٕ یہِ چھُ لُکوٕے پتہٕ پی ڈی پی یوتھ ونگ کی جانب سے یوتھ فور چینج کے حوالے سے چل رہی سگنیچر کیمپین کے تحت ٹاؤن ہال شوپیاں میں نوجوانوں کا ایک روزہ اجلاس منعقد کیا گیا. اس دستخطی مہم میں شوپیاں حلقہ انتخاب سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے حصہ لیا. اس موقع پر یوتھ کنونشن میں پی ڈی پی کے یوتھ صدر وحید الرحمان پارا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست میں نوجوانوں کی بہتری کے لیے تبدیلی ضروری ہے. مجھے مکان میں وسن مجھے ایم ایل اے ست کت کر مجھے گاڑی تھونی مجھے پروٹوکال تھون پہ تیلے بس مطلب تمہ ہوں سہ مے سب نیران مان چکرس گامس مز. یہ کمپین ان نوجوانوں کی ہے جو اس وقت ریاست میں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے اور جو تبدیلی چاہتے ہیں جو چینج چاہتے ہیں. اس وقت جو آپ کشمیری نوجوان میں ریسٹلیسنس دیکھ رہے ہیں ایک تبدیلی کے لیے ایک پولیٹیکل چینج کے لیے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہر گاؤں میں ہم جائیں نوجوانوں سے بات کریں ان سے مشورہ کریں اور پتہ کریں کہ آخر کشمیر کا نوجوان جو اس وقت اسٹیٹ ریپریشن میں اور اسٹیٹ کا ایک سب سے بڑا کیجویلٹی بن چکا ہے کہ ان کے سارے ایشوز کیا ہے پولیٹیکل سوشل اور اکنامیکل ایشوز کیا ہے. تو ہم وہی ایک سگنیچر کیمپین اس میں. ایل اے ایچ ڈی سی کرگل کے ایگزیکٹو کاؤنسلر حاجی محمد شفیع نے دراس کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا اچانک دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے سری نگر کرگل قومی شاہراہ کا بھی جائزہ لیا. قومی شاہراہ متین گاؤں تک کھولی گئی ہے. ایل اے ایچ ڈی سی کرگل کے حکام نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سرما کے دوران زوجلا درے کو کھولنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر انہوں نے لوگوں میں کمبل بھی تقسیم کیے. ہم تو اس امید سے گئے تھے کہ وہاں سے راستہ کھلوا کر جتنے بھی وہاں لوگ سٹینڈرڈ تھے وہاں بند تھے ان کو لے آنے کی. لیکن آپ کو پتہ ہے انسان کی کوششوں کے سامنے قدرت بھی ایک بڑی چیز ہے. قدرت جب تک نہ آپ کا ساتھ نہیں ہوگا آپ جتنا بھی کوشش کریں تھوڑا آپ کو مشکل ہوتا ہے. یہ میں برو روڈ زیادہ مشکلات یہ گونیک چانس یعنی کہ کانگریس گونیک چانس باقی نیشنل ویلیس دیوان تم نومبر پتہ ناو ہیوان کہیں یہ گونیک مبارک. مہربانی ہے شکریہ تہذی شیخی مہربانی جیسے جنوری ماتو جنوری لام چیلوس شکریہ لام مہربانی. جموں کشمیر سی ایس سی ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے تئیں حکومت کی سرد مہری پر ناخوشی ظاہر کی ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایس سی کے لیڈروں نے کہا کہ وہ مسلسل اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. وہ کم ہو جائے گا اور سینٹرلائز کام ہو جائے گا اس سے وہ فیملیز ہے اور ان کے ریلیٹیوز ہے. اگر اس پہ نظر دوڑائی جائے تو ایک بہت بڑی پاپولیشن بنتی ہے. تو خالی میں ووٹر نہیں ہوں میری فیملی میں 10 بندے ووٹر ہیں تو ایسے ہی 1100 بندے ووٹر نہیں ہیں ان کے 1100 فیملیز بھی ووٹرز ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا ہے الٹیمیٹلی جو رولنگ پارٹیز ہیں اس وقت 2009 سے جن کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں جن سے ہم ریپرزنٹیشن جن کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں جو فیل ہو رہی ہیں ہماری جو ڈیمانڈس ہیں جینوئن ڈیمانڈس ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے میں. تو ہم نے یہ سوچا ہے ان کے خلاف اینٹی الیکشن کیمپین اپنی سوسائٹی اپنے گھر سے شروع کر کے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ دیم. اکھل بھارتی صفائی مزدور سنگھ نے اپنے مسائل کے حل میں حکومت کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا. مزدور سنگھ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. اور آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے جا رہی ہے ایم ایل اے کی ایم پیز کی تو ہماری کمیونٹی کے گھروں میں جب ووٹ مانگنے آئیں گے تو یہ حساب لگا لینا کہ اگر یہ ہماری ڈیمانڈز پوری نہ ہوئی تو ہمارے گھروں میں اپنی ووٹ کے لیے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے مت آئیں. ہم ٹوٹلی
वोट को बाइकआउट करेंगे। पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने रियासत के मुख्तलिफ तबकों में हुकूमत के खिलाफ बढ़ती नाराजगी पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी, पीएचई और बेरोजगार नौजवान अरसे से अपने हुकूक की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। 3500 रुपए की डेली वेतन नहीं रखना चाहते हैं, सभी मुलाजमों की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एनसी और कांग्रेस के दरमियान जब भी इलेक्शन आता है तो डिफरेंसेस आने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज होता है, और यूं ही इलेक्शन खत्म होती है, दोनों मिलकर लूटते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ट्रेजेडी एक ये है कि पीडीपी भी तीसरा चेहरा बन गई है इस कश्मीरी लीडरशिप का। मैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कोई भी फर्क नहीं समझता हूं। सभी के सभी हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन के खिलाफ है। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद देखिए खास बात हुरैरा के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे, उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिदाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइडल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। खास बात के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में तुझको एहतिशाम से मनाया जा रहा है जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजहबी रहनुमाओं ने मोहसिन इंसानियत के पैगाम को आम करने पर दिया जोर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत को संवारा जा सकता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रहनुमा बनाकर आपसे खिलाफात किए जा सकते हैं खत्म। कालके धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णन का मशवरा।
اور مظفر نگر فسادات پر مولانا ارشد مدنی نے اکھلیش حکومت کو دی کلین چٹ، کہا انتظامیہ کا ٹھیکرا حکومت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے خاص بات کی بڑی خبر۔ زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کے دن عرب کے ریگستان میں ایک ایسا پھول کھلا جس نے پورے عالم کو مہکا دیا۔ آپ کے سال پیدائش کو عرب نے سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دیا، یعنی فرحت و انبساط کا سال۔ وہ عظیم ترین شخصیت جس نے نہ صرف عرب کے بدوؤں کو سلیقہ سکھایا بلکہ پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا، جس کی کوئی دوسری مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ پیش ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر یہ خاص رپورٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تاریخ میں اہم ترین شخصیت کے طور پر نمودار ہوئے اور ان کی یہ خصوصیت عالمی سطح پر مصدقہ طور پر تسلیم شدہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ آپ کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینے میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، اور یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القابات سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہاں 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام انسان کو پہنچایا وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 عام الفیل 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بعثت سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ گاندھی جی نے لکھا ہے کہ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی۔ میں اسلام کا جتنا مطالعہ کرتا ہوں اتنا مجھے یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب تلوار سے نہیں پھیلا۔ جرمنی کا مشہور ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار گوئٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح اور عاشق تھا۔ اپنی تخلیق دیوان مغربی میں گوئٹے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جگہ جگہ عشق محمد کا اظہار کیا ہے
और उनके कदमों में अकीदत के फूल निछावर किए हैं। फ्रांस के मुहक्किक जी लिबर्टाइन ने अपनी किताब तारीख तुर्की में इंसानी अजमत के लिए जो मेयार कायम किया, इस जिम्न में फाजिल तारीखदां लिखता है कि अगर इंसानी अजमत को नापने के लिए 3 शराइत अहम हैं, जिनमें 1 मकसद की बुलंदी, 2 वसाइल की कमी और 3 हैरत अंगेज नताइज, तो इस मेयार पर जदीद तारीख की कौन सी शख्सियत मोहम्मद से हमसरी का दावा कर सकती है? तुझ पे सलाम और दुरूद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कानपुर में तारीखी जुलूस निकाला गया। जमीयत उलमा हिंद के क़यादत में निकलने वाले जुलूस में तकरीबन 1 लाख लोगों और दर्जनों अंजुमनों ने शिरकत की। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ फूल बाग मैदान में जलसे की शक्ल में तब्दील हो गया। जलसे में मुकर्रीन ने शुरका से नबी आखिरुज़्ज़मा के नक्शे कदम पर चलने की अपील की। पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद का एहतमाम किया जा रहा है। कानपुर में भी एक तारीखी जुलूस निकाला गया। जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में निकलने वाले इस जुलूस में कई लाख लोगों ने शिरकत की। जुलूस मोहम्मदी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ फूल बाग मैदान में जलसे की शक्ल में तब्दील हो गया। जलसे में मुकर्रीन ने शुरका से नबी आखिरुज़्ज़मा के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन की। कानपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुनक़िद होने वाला जश्न चिराग़ां कौमी एकता की बेहतरीन मिसाल है। इस जश्न चिराग़ां का इम्तियाजी पहलू ये है कि उसका इंतजाम गैर मुस्लिमों के जरिए किया जाता है। जुलूस मोहम्मदी 100 बरस मुकम्मल होने के मौके पर इस बार जश्न चिराग़ां को भी खास अंदाज में मनाया गया। जश्न चिराग़ां में जहाँ एक तरफ मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ जश्न चिराग़ां का इंतजाम मकामी गैर मुस्लिमों के हाथों में होता है। ऑल इंडिया त्योहार कमेटी की जानिब से भोपाल में भी जुलूस मोहम्मदी रास्ता की गई। साथ ही अल कुरान मिशन की जानिब से लोगों में कुरान के नुस्खे तकसीम किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे सूबे में ईद मिलादुन्नबी का जश्न रवायती जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। लखनऊ में मदह सहाबा का तारीखी जुलूस भी अमीनाबाद पार्क से निकाला गया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा की क़यादत में निकलने वाले जुलूस में शहर की सैकड़ों अंजुमनों ने शिरकत की। आज एक साथ कई त्योहार होने की वजह से जिला इंतजामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। अलहरा एजुकेशन सोसाइटी और जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग की जानिब से मिलादुन्नबी के मौके पर नांदेड़ में आज खून के अतिया का एहतमाम किया गया। इस कैंप में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने मोहब्बत रसूल और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत खून का अतिया दिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में भी रवायती जोशो खरोश के साथ जश्न मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर निगरानी जुलूस निकाला गया। निजाम कॉलोनी से शुरू होने वाला यह जुलूस शिवाजी नगर, वजीराबाद से होते हुए मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा और मोहम्मद अली रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर जलसे का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में भी रवायती शान शौकत के साथ ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस जामे मस्जिद से शुरू होकर लाल पुल और मीराजी चौक होता हुआ शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। इस मौके पर पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए थे। मेरठ में ऑल इंडिया सीरत कमेटी और माइनॉरिटी एजुकेशनल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में मुख्तलिफ अंजुमनों ने शिरकत की और हदिया नात रसूल पेश किया। झारखंड के शहर रांची में भी मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए। साथ ही सीरत के जलसों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ कराया। राजस्थान के शहर जयपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बज़्म सलाम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की।
अजमेर के दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में गुज़िश्ता रात जश्न ईद मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसके बाद हस्ब रवायत समा की महफिल मुनक़द की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में रैलियां निकाली गईं। हैदराबाद के पुराने शहर में सुन्नी यूनाइटेड फोरम के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई। वहीं करीमनगर, निजामाबाद, करनूल और सिरकाकुलम में भी मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रैलियां निकाली। पेश है ये रिपोर्ट। हैदराबाद के पुराने शहर में यूनाइटेड फोरम की जानिब से जुलूस रहमतुल लिल आलमीन निकाला गया। ये जुलूस मक्का मस्जिद से निकाला गया और सालार जंग म्यूजियम पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया। जुलूस मिलाद में तकरीबन 50,000 मुसलमानों ने शिरकत की। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चार मीनार और अतराफ के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने पुराने शहर पहुंचकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अनुराग शर्मा ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या जिला मेदक के जहीराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। मुस्लिम कांग्रेस कोर कमेटी के ज़ेरे एहतमाम किए गए इस प्रोग्राम में 10 मुस्लिम जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। इस मौके पर ताम का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा जिला मेदक के मुख्तलिफ मकामात पर भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाले गए। वहीं जिला निजामाबाद में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश देखा गया। इस मौके पर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ी गईं। इस मौके पर फर्जंदान तौहीद ने मुल्क में अमन की बरकरारी पर जोर दिया। निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इन जलसों में मुकर्रीन ने मोहसिन इंसानियत के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। साहिली आंध्रा के विजयनगरम में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों ने जुलूस और जलसे किए। इसके अलावा रायलसीमा के जिला अनंतपुर में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी में अकीदतमंदों का अज़दहाम देखा गया। गुंटूर, तिरुपति, विजयवाड़ा, करनूल, सिरकाकुलम, चित्तूर, कड़पा के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रैलियां और जुलूसों का एहतमाम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
4 5 6 पंजे 30। दिमाग का हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू करे निर्मल भारत तहरीक। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खला। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात का मकसद इंसानियत के बका और खुशनुदी है। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने मुल्कों में बसने वाले मजहबी अकलियतों के साथ अदलो इंसाफ के साथ पेश आए। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में मुनक्किदा आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त आला डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब में किया। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में तहरीक मिनहाजुल कुरान के तहत आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त आला डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम से खिताब किया। ताहिरुल कादरी ने अपने खिताब में हिंदुस्तान का दौरा मनसूख करने की वजूहात बताई। मगर इंडिया के चूंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गए और इंतखाबात के करीब होने के बायस गवर्नमेंट की एजेंसीज ने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस वक्त वीजा इशू नहीं किया। हरचंद कि उन्होंने डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया, इसे मुअख्खर कर दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने खिताब में अमन, इत्तेहाद, भाईचारा और हुकूक इंसानी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। ताहिरुल कादरी ने कहा कि इस मर्तबा की आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का एक मकसद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करना है। All minorities, religious minorities, they should feel safe and secure. Be they in India or in Pakistan or any other country of SAARC or any other country of the world. All religious minorities should have the same rights and obligations. They should enjoy the same level of protection and freedom as the majority communities are enjoying in their own countries. तहरीक मिनहाजुल कुरान के जिम्मेदारों ने बेंगलुरु की वीडियो कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार देते हुए कहा कि मुल्क के दीगर शहरों में भी इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। काफी कामयाब हुए, हम खुश हैं इससे। आइंदा भी हम दूसरे शहरों में, पूरे जितने इंडिया के जो दूसरे शहर हैं, वहां पर भी इस किस्म के हम रैलीज और प्रोग्राम्स डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के करवाएंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कनाडा के टोरंटो शहर में अपने स्टूडियो के जरिए बेंगलुरु के अवाम से खिताब किया। मिनहाजुल कुरान के मुताबिक ताहिरुल कादरी के इस खिताब को बैक वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 200 शहरों से जोड़ा गया था। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। उधर कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में जोशो खरोश के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात में मिलाद के जलसे और जुलूस का इनेकाद अमल में आया। सिटी मार्केट, टैनरी रोड, शिवाजी नगर, गौरी पालिया, सुल्तान पालिया, यारब नगर, काटन पेट में मिलाद के जुलूस बरामद हुए। बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद के जलसों में शिरकत की। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के अरकान ने अदब व एहतराम के साथ जुलूस के इनेकाद के लिए जगह जगह पर मुबल्लिगीन और रजाकारों को तैनात किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए नबी है। इसका इजहार आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने किया। ऑल इंडिया संत कमेटी श्री कालकी धाम के सदर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से मुनक्किदा जलसे यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिताब के लिए खुसूसी तौर पर हैदराबाद मदऊ किया गया था।
आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जिहाद और दहशत गर्दी के मौजू पर खिताब के लिए खुसूसी तौर